स्पष्टीकरण 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7 But if we walk in the light as he is in the light, जैसे हम प्रकाश में चलते हैं जैसा वो प्रकाश में है, we have fellowship one with another. हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता The है. blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है. The tense in this scripture is continuing present tense. और जिस काल में ये बात कही गई है वो निरंतर होते रहने वाला अभी के समय की बात हो रही है. That means not only the blood of Jesus cleansed you, it keeps on cleansing you. इसका मतलब यीशु के लहू ने न केवल आपको शुद्ध किया था, वो आपको निरंतर शुद्ध करता रह रहा है. Amen? It's continually cleansing us. वो लगातार हमें शुद्ध कर रहा है. And that's why we have this position before God, that we are now known as holy saints of God. इसीलिए परमेश्वर के सामने अब हमारा ये स्थान है कि हम उसके पवित्र संत कहलाते हैं. Amen? Because the blood in the spirit realm, anything that comes to defile you, if you did something, if you messed up, your conscience is now defiled, the blood comes. क्योंकि अगर आपने कोई गलती की या आत्मिक दुनिया में कुछ भी अगर आपके विवेक को मैला करने के लिए आता है, तो उसी समय वो यीशु का लहू आपको निरंतर साफ करता, शुद्ध करता चला जाता है. Amen? It's in continuing present tense. ये निरंतर होने वाले काल में लिखा गया है. When David sinned and committed adultery, जब दाऊद ने पाप किया और व्यभिचार किया, so he wrote Psalm 51. तो उसने भजन 91 And लिखा. let me read one scripture, Psalm 51:7. मैं 91 उसका 7 पढ़ना चाहता हूँ. And it says, purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow. तू मुझे विधि विधान के साथ जूफा के पौधे का प्रयोग करके पवित्र कर, तब तक मुझे तू धो जब तक मैं हिम से बर्फ से अधिक उज्जवल न हो जाऊं. And what is David talking about? और दाऊद क्या कह रहा है? Purge me with hyssop. He's going back to Exodus 12, where they were commanded to sprinkle the blood from hyssop. और वो हिसप पर वापस जा रहा है, क्योंकि जहां पर इजरायलियों को आदेश दिया गया था कि हिसप के पौधे से, हिसप से उनको लहू लगाना Now है. hear this carefully. सुनिए, Every time you do something or you did something that is wrong and your conscience is defiled, quickly go before the Father, take the hyssop. What's the hyssop? Your tongue, and sprinkle the blood in your conscience. जब कभी आपने कुछ गलत किया है, आपसे कोई गलती हो गई, तो उसी समय जल्दी से पिता की उपस्थिति में जाएं और हिसप का प्रयोग करें. वो हिसप क्या है? आपकी जीभ, उस जीभ के द्वारा उस लहू को छिड़के अपने विवेक पर. Now please don't misunderstand me. I'm not saying you lost your salvation or Father didn't forgive you. Father is constant. But your conscience, when your conscience gets defiled, you will have no boldness before God. मेरी बात समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपना उद्धार गवा दिया है, पिता ने आपको छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन जब हमसे कोई अपराध होता है तो हमारा विवेक दूषित हो जाता है, और दूषित विवेक के साथ हम पिता के सामने साहस से नहीं जा सकते. Sin does not change God's behavior towards you, but sin changes your behavior towards God. पाप परमेश्वर का रवैया आपके लिए नहीं बदल सकता, पाप आपका रवैया परमेश्वर की ओर बदल देता है. Your defiled conscience will tell you, don't touch the word. Your defiled conscience will tell you, don't pray. Don't go out to lay hand on that person. आपका दूषित विवेक आप पर आरोप लगाते हुए कहेगा कि वचन को मत छूना, प्रार्थना मत करना, किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना मत करना. And so many Christians have been deceived. और बहुत से मसीह धोखा खा गए हैं. You know, one of he was in my first office and he was a Christian, and I asked him, I said, do you read your Bible every day? He said, oh, I don't even touch the Bible. मेरे पहले ऑफिस में एक मसीह भाई था, और मैंने उनसे पूछा क्या आप वचन पढ़ते हैं रोज? उन्होंने कहा मैं तो बाइबल को छूता भी नहीं हूँ. I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, I'm too unholy for that. तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही अपवित्र हूँ उसको It's छूने के only लिए. for holy people. बाइबल केवल पवित्र लोगों के लिए है. See?
So many Christians are deceived into believing that. बहुत से विश्वासी धोखा खा चुके हैं और ऐसा मानते हैं। Now, our conscience हमारा that विवेक gets defiled जो मैला हो जाता है stops us हमें रोकता to है approach the throne of कि grace. हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने ही ना जाएं। That's why it's very powerful to quickly go before the Father, take the hyssop, take the blood, sprinkle it in your conscience. इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है कि जल्दी से हम पिता की उपस्थिति में जाएं, उस हिस्सब को लें, अपने विवेक पर उस लहू को छिड़कें। Amen. You can say, Father, I आप know कह I सकते messed हैं, up. पिता मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। I know I shouldn't have been, I shouldn't have argued with that person. मैं जानता हूं मुझे उस व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए थी। Lord, I know I shouldn't have shouted on that ओ person. प्रभु मुझे पता है मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था उस व्यक्ति पे। I know I shouldn't be a part of this business deal. मुझे पता है मुझे इस बिजनेस डील का I हिस्सा knew नहीं होना something चाहिए was wrong, but I went ahead. था। मुझे पता है कुछ दिक्कत है फिर भी मैं आगे बढ़ Father, गया। I thank you that the blood of your son Jesus cleanses all my sins. लेकिन पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके पुत्र यीशु का लहू मुझे सारे अपराधों से साफ करता है। Thank you, Father, for blood that was shed for me. Thank you, Father. धन्यवाद पिता आपके लहू के लिए जो मेरे लिए बहाया गया था। What are you धन्यवाद। doing? क्या कर रहे हैं? You're taking the hyssop आप सबको ले रहे and हैं you're sprinkling the blood in your और conscience. लहू को अपने विवेक पर छिड़क रहे हैं। Amen. आमेन। Do you know why so many Christians don't move in signs and wonders and miracles? आप जानते हैं बहुत से मसीह लोग क्यों चिन्ह चमत्कारों में नहीं जीते? It's for everyone ये सभी के लिए हैं, because their conscience is defiled. लेकिन इसलिए क्योंकि उन मसीहों के विवेक दूषित हो चुके हैं। They don't feel bold to stand before. If somebody is demonized, they will say, "No, no, no." उनको साहस महसूस नहीं होता सामने जाने के लिए। अगर किसी में दुष्ट आत्मा है तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा प्रार्थना करने। That's the beautiful mystery about the blood of Jesus. यीशु के लहू की यही खूबसूरत रहस्य है। Yes. Are you ready? सुनिए, It gives you the boldness to stand before God and stand against devil. यीशु का लहू आपको साहस देता है कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें और शैतान का विरोध कर सकें। I'll say that again. मैं दोबारा The blood of Jesus यीशु का gives लहू you the boldness to stand before the Father and stand against the enemy. यीशु का लहू आपको साहस देता है कि आप पिता के सामने खड़े हो सकें और शैतान का विरोध कर सकें। Amen. All right, Hebrews 10, we'll see verse 1 and 2. इब्रानी 10 उसका 1 और 2 देखिए। Are you still alive? अभी भी जीवित हैं? Okay. Don't worry. If you're getting any thoughts अगर कोई ऐसे विचार आ रहे हैं from the enemy, दुश्मन से we will sprinkle तो हम some blood. कुछ लहू छिड़क देंगे आपके विवेक, We'll deal with your conscience. आपके विवेक को ठीक कर देंगे। Amen. For the law having a shadow of the good things to come. व्यवस्था तो आने वाली उत्तम बातों की परछाई थी। Come on, turn to your neighbor. पड़ोसी को देखें, Say, neighbor, बोलो पड़ोसी, we are expecting good things to come. हम अच्छी चीजें आने वाली हैं इसका इंतजार कर रहे हैं। Oh, brother, you don't know, brother, what is coming, brother? अरे Good भाई, things. अरे भाई आप नहीं Good जानते क्या आ रहा है। things अच्छी are चीजें coming. अच्छी चीजें आ रही हैं आपके जीवन में। Good things. अच्छी चीजें आ Your रही हैं। Father has planned good things for you. आपके पिता ने आपके लिए अच्छी चीजें सोच कर रखी हैं। Amen. Religion has also defiled many people's conscience. They धर्म cannot think good. धर्म ने भी बहुत से लोगों के विवेक को दूषित कर दिया है, वो अच्छा सोच ही नहीं सकते। They have made the second coming of Jesus a horror movie. Anyway, उन्होंने यीशु के दूसरे आगमन को एक डरावनी मूवी बना दिया है। hallelujah. So, and not the very image of things और वो पुरानी बातें प्रमाण नहीं थी। can never. What does never means? Do you know what never means in Hebrew? And Greek? It means never. कभी नहीं का अर्थ कभी नहीं ही होता है यूनानी इब्रानी सब भाषाओं में। Can never with these same sacrifice which they offer continually year by year make those who approach what? Perfect. इसीलिए उन्हीं बलियों के द्वारा जिन्हें निरंतर हर साल कभी ना रुके हुए दिया जा रहा था, उपासना करने वाले जो उसके निकट आते थे उनको कभी भी सदा के लिए संपूर्ण सिद्ध नहीं कर सकती थी। Perfect.
संपूर्ण सिद्ध नहीं कर सकती। God's desire for you is to be perfect. परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा ये है कि आप सिद्ध, Now संपूर्ण hear सिद्ध this. हो। Hear this. सुनिए, Perfect in the Hebrew context. इब्रानी मानसिकता के लिए If you सिद्ध जो है, take a circle, अगर आप एक दायरा बनाना शुरू करें, if you take a circle, if you draw a circle, अगर आप दायरा बनाना शुरू करें, start drawing a circle, gola, एक दायरा गोला बनाते रहें, right? Doesn't matter the shape. As long as you are in the process, Hebrew calls it perfect. अगर आप एक गोला बनाते रहें, चाहे उसकी शेप कैसी भी बन रही हो, जब तक आप बना रहे हैं, इब्रानी मानसिकता कहती है कि वो सिद्ध है। If you just make it and stop it, then it's not perfect. अगर आप बना रहे थे और आप रुक गए तो वो सिद्ध नहीं As रहा। long as you're drawing it, it's perfect. जब तक आप उसको बनाते रहेंगे वो सिद्ध कहलाएगा। God calls you perfect because the blood of Jesus is continually cleansing you. परमेश्वर आपको सिद्ध इसलिए कहता है क्योंकि यीशु का लहू आपको निरंतर पवित्र करता जा रहा है। From day the blood of Jesus was shed till today, it has not stopped cleansing the saints in light. जिस दिन यीशु का लहू बहाया गया था, उस दिन से आज तक यीशु का लहू रुका नहीं है पवित्र संतों को सिद्ध करते रहने में। Amen. And perfect also means mature, और सिद्ध का यह भी अर्थ है सयाना होना, परिपक्व होना, right? Mature. परिपक्व Do होना। you know who are mature? अब जानते हैं कौन सयाने हैं, कौन परिपक्व हैं? Let's see. For then would they not have ceased to be offered? क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका चढ़ाया जाना बंद ना हो जाता। If in the Old Testament the blood of bulls and goats would have made the worshippers perfect, then they wouldn't offer it next year, but they used to do it every year. क्योंकि पुराने नियम के अनुसार जो वो जानवरों का लहू चढ़ाते थे, अगर उससे जो बलि चढ़ा रहे हैं अगर वो सिद्ध हो जाते तो हर साल जरूरत नहीं पड़ती चढ़ाने की। Because they were continually thinking of their sins. लेकिन क्योंकि निरंतर वो अपने अपराधों को देखते थे, इसीलिए उनके बारे में सोचते थे और ऐसा करते थे। Right? They were continually thinking of what? वो निरंतर अपने अपराधों के बारे There में are सोचते so थे। many born again believers that are standing in the wrong covenant. बहुत से नया जन्म पाए हुए विश्वासी आज भी हैं जो गलत वाचा में खड़े हुए हैं। They are continually thinking about what? वो क्या सोच रहे हैं निरंतर? Their sins. अपने पापों के बारे में। There are denominations that when they pray, even for their food or everything, first they will repent of every sin, then they'll bind every demon, so they have things, and then they will go ahead. But continually they are thinking of their sins. ऐसे डिनोमिनेशंस अगर खाने के लिए भी प्रार्थना करनी तो पहले अपने सारे पापों की क्षमा मांगते हैं, फिर सारी दुष्ट आत्मा को मानते हैं और ऐसे प्रार्थना करते हैं, So लेकिन they are निरंतर अपने पाप के बारे में सोचते हैं। Continually thinking of their sins. निरंतर वो अपने पाप के बारे में सोचते But what happens हैं। लेकिन क्या होता है in the new covenant नई वाचा में, when the blood of the lamb is shed जब मेमने का लहू बहा दिया गया and it cleanses your consciousness? और वो आपके विवेक को शुद्ध कर देता है। Okay. For the worshippers once purified, how many times? क्योंकि फिर तो उपासना करने वाले एक ही बार में सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो So जाते हैं। when God purified you, He once purified you. जब परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया तो एक बारी हमेशा के लिए पवित्र बना Once दिया। purified, what will happen? Would have no more consciousness of sins. तो फिर कभी स्वयं को अपराधी नहीं समझते। इसका अर्थ यह है कि कभी उनका विवेक उनको अपराधी नहीं कहेगा। Amen. The more you think about sin, the more you talk about sin, the more you will sin. जितना आप पापों के बारे में सोचेंगे, जितना पापों के बारे में बात करेंगे, उतना पाप करेंगे। जितना आप कहेंगे प्रभु जी मैं पापी हूँ, As much as you will say, Lord, I am a sinner, that's what you'll do. तो आप वही करेंगे। You know, few years ago, not few years, I think 7 to 8 years ago, we went to UP in a church where in every few months, you have to openly confess, and everybody beats their chest and cries out that they are a sinner. And what an insult it is to the blood of Jesus. 7-8 साल पहले मैं यूपी में एक कलीसिया में गया था, जहाँ पर हर 6 महीने में वो सभा होती है, जहाँ पर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को अपने सारे पापों को अंगीकार करना होता है सबके सामने और फिर पीट कर रोना होता है। लेकिन यीशु के लहू के लिए तौहीन की बात है। If you still believe you're a sinner, अगर आप आज भी ये मानते हैं कि आप पापी हैं, you're insulting
the blood of Jesus. तो आप यीशु के लहू की बेइज्जती कर रहे हैं. You're not confessing what the Bible says. आप वो नहीं अंगीकार कर रहे जो बाइबल आपसे कहती है करने को. You are confessing what you feel in your in your conscience. आप वो अंगीकार कर रहे हैं जो अपने विवेक में आप महसूस करते हैं. What you are saying is, even though Jesus shed his blood, but I am still in my sins. आप ये कह रहे हैं कि हालांकि यीशु ने तो अपना लहू बहा दिया, फिर भी आज भी मैं अपने पापों में हूँ. If you are still in your sins, then you are not a part of his body. अगर आप आज भी पापों में हैं, तो आप यीशु की देह का हिस्सा नहीं हैं. For the worship, say after me. For the worshippers. मेरे साथ कहें, जो आराधक थे. Oh हो, थोड़ा फास्टिंग का इफेक्ट लग रहा है मुझे. एनर्जी है अभी? Okay. आज तो पहला ही दिन है. If I can stand and preach, you can sit down and hear better. अगर मैं खड़े होकर प्रचार कर सकता हूँ, तो आप बैठकर अच्छे से सुन सकते हैं. Amen. So, for the worshippers. प्रभु कुछ करना पड़ेगा. Let's try one more time. एक और Ready? बार कोशिश करते हैं. For the worshippers, once purified, will have no more consciousness of sins. हिंदी वाले मेरे साथ बोले, जो आराधक एक बार पवित्र किए गए, तो दोबारा अपने विवेक में पाप ना रखेंगे. Amen. A conscience that doesn't believe, Bible calls it evil conscience. वो विवेक जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, बाइबल उसे दुष्ट विवेक कहती है. You know, there is an enemy who is constantly accusing you. एक दुश्मन है जो लगातार आप पर इल्जाम लगा रहा है. Night and day he is accusing you. दिन और रात वो आप पर इल्जाम लगा रहा है. And he also sometimes uses family members and relatives. और कई बार वो परिवारजन और रिश्तेदारों के द्वारा भी बात करता है. यही सिखाते हैं तुम्हारे चर्च में? That's what they teach you in your church. तुम तो कहते हो तुम प्रभु में हो. You say you are in the Lord. It's not my righteousness. It's the righteousness His blood gave us. मेरी धार्मिकता नहीं है, ये वो धार्मिकता है जो उसके लहू ने मुझे दी है. It's His blood that purified us, that cleansed us. उसका लहू है जिसने हमें सिद्ध किया, पवित्र बना दिया. So even when people accuse you, even when your own conscience accuses you, you can be bold and confess that I am washed, purified by the blood of Jesus. जब लोग आप पर निशाना लगाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, जब आपका खुद का विवेक आप पर आरोप लगाता है, तब भी आप इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि यीशु के लहू ने मुझे पवित्र बना दिया है. Amen. So how would you know you're becoming perfected or mature? तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप सिद्ध हो रहे हैं, आप परिपक्व हो रहे हैं? The more you refer to yourself as God refers to you. जितना ज्यादा आप अपने विषय में वो कहेंगे जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है. The less you think about sin, the less you're gonna sin. जितना कम आप पाप के बारे में सोचेंगे, उतना कम आप पाप में जिएंगे. Amen. You know, Eliana, she keeps giving me nicknames. एलियाना पास्टर को नए नए नाम देती रहती है. Now it's Papu. और अभी जो नाम है वो पापू है. इससे पहले था Papi. The name I before said, this is Papi. this I won't take. मैंने कहा ये नाम मैं नहीं लूंगा. I am not Papi, I am Dharmi. So she used to call me Dharmi. मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूँ, तो फिर मुझे धर्मी बुलाया करती थी. Amen. Amen. आप पापी नहीं हो. You are not a sinner. Amen. Amen. You are not a sinner. आप पापी नहीं हैं. You are sons and daughters of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. The blood of His Son is continually cleansing us. उसके बेटे का लहू हमें निरंतर शुद्ध पवित्र बनाता चला. That's why it's better इसीलिए वो बेहतर है than bulls and goats, because that has to be done every year. This is once done. जानवरों के लहू से वो इसीलिए बेहतर है क्योंकि उसको हर साल करना पड़ता था. ये एक बारी और हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है इसने. Okay, Hebrews 9:14. इब्रानी 9 उसका 14.
How much more? तो फिर कितना ज्यादा, Say how much more? बोले कितना ज्यादा Shall the blood of Christ, मसीह का लहू, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, जिसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को बिना दाग धब्बे परमेश्वर को सौंप दिया, cleanse your conscience from dead works आपके विवेक को मरे हुए कामों से पवित्र कर देगा, to serve the living God? ताकि आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। There are so many people going out to minister and they are in ministry but their conscience continually condemns. बहुत से लोग हैं जो बाहर जाकर सेवकाई कर रहे हैं, निरंतर सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनका विवेक लगातार उन पर दोष लगाता जा रहा है। When they come home, when nobody is saying, bam, this loud voice accuses them day and night. जब वो घर आते हैं, कोई उनको नहीं सुन रहा, तो अचानक से उनके विवेक की ऊंची आवाज उन पर आरोप लगाना शुरू करती But है। what does the blood of Christ do? लेकिन यीशु का लहू क्या करता Come on, है? can you read it? पढ़ सकते हैं? It cleanses our conscience from dead works वो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से पवित्र कर देता है, so that we can serve the living God. ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा Hear करें। this. You cannot serve God with a defiled conscience. आप परमेश्वर की सेवा एक दूषित विवेक के साथ नहीं कर सकते। You will never feel boldness before God आपको कभी परमेश्वर के सामने वो साहस नहीं लगेगा, because you are depending on your own righteousness, your own works. क्योंकि आप निर्भर हैं अपनी खुद की धार्मिकता, अपने खुद के भलाई के कामों पर। Have you ever seen somebody you called them and you said, let's go, there's a demon. They say, no, let me fast for 3 days. आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप कहेंगे चलो वहां पे दुष्ट आत्मा है, उस व्यक्ति में निकाल के आते हैं। नहीं, 3 दिन दो, मुझे उपवास प्रार्थना करने दो पहले। What a privilege we have कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा that we know where to go when we feel guilty. कि हमें पता है कि हम कहाँ जाएं जब हमें दोष महसूस Hear हो। this. सुनिए, You don't realize it. आपको पता नहीं, समझ नहीं आ So many पाएगा। people who committed suicide बहुत से लोग जिन्होंने आत्महत्या कर ली, because their conscience continuously accused them and they didn't know what to do with a guilty conscience. वो इसलिए की क्योंकि उनका विवेक उन पर आरोप लगाता चला जा रहा था और उनको नहीं पता था कहाँ जाएं उस विवेक के साथ जो उनको कोस रहा है। Look at Judas. यहूदा को देखें, What a privilege that when we feel guilty, we know where to go. कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा जब हमें पता है कि हम दोष महसूस कर रहे हैं तो कहाँ जाना है हम जानते I'm हैं। telling you, living with a guilt-free conscience is better than living in a mansion. एक दोषहीन विवेक के साथ जीना एक बड़े महल में जीने से बहुत उत्तम है। You didn't get it. Let me say it again. मैं दोबारा बताता हूँ, I pray may the Lord give you understanding. प्रभु आपको समझ दे। There are so many people who get rich by all the wrong things and they say we are doing it for our kids, but constantly their conscience pricks them. बहुत से लोग हैं जो गलत काम करके अमीर बनते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन निरंतर उनका विवेक उनको खाता चला They जाता have है। no rest night and day. रात और दिन उनको कोई आराम नहीं मिलता। When your conscience is clean, you sleep so well at night. जब आपका विवेक शुद्ध हो तो आप इत्मीनान से रात को सोते हैं। Amen. The Bible says the wicked flee when no one is pursuing them. बाइबल कहती है दुष्ट तब भी भाग रहा होता है जब कोई पीछा नहीं कर रहा, But righteous are bold as lions. लेकिन धर्मी शेर की तरह साहसी होते हैं। Amen. The blood that makes you righteous gives you boldness. वो लहू जो आपको धर्मी बनाता है वही लहू आपको साहस देता है। Amen. आमीन। Hallelujah. We are going to